हे हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रतीक्षा फ्रॉम कैट सेंटर। तो आज फिर से मैं आपके लिए लाई हूँ एक जॉब वैकेंसी। तो अब तक के आपने सारे वीडियो देखे होंगे तो ज़रूर वो आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे, क्योंकि उन सारे वीडियो में मैंने बताया कि कौन से सॉफ्टवेयर की नीड है, कौन से सॉफ्टवेयर के ऊपर मार्केट में कौन से सॉफ्टवेयर की नीड है, या फिर कौन से सॉफ्टवेयर पे ऊपर कौन सी वैकेंसी है। वो जो वैकेंसी आती है जैसे कि डिज़ाइन इंजीनियर या फिर इंटर्न जो है, उनका काम क्या रहता है, डेली शेड्यूल क्या रहता है, वो सब मैंने अब तक के वीडियो में देखा है, बताया है। तो अब इस वीडियो में भी हम सेम वही करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज की वैकेंसी कौन सी कंपनी की तरफ से है, या फिर आज की वैकेंसी कौन सी है और कौन से सॉफ्टवेयर की नीड है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का ये वीडियो। उससे पहले हम थोड़ा सा हमारे प्रोडक्ट आर्किटेक्ट को सुनते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। तो चलिए सुनते हैं हमारे प्रोडक्ट आर्किटेक्ट को। Hello friends, welcome to the section of job study. This is Kaustup Panse, architect, design your own university. Let's first understand what is this section all about. Guys, when we conducted the survey for student, about 500 people have filled the survey. The major pain area of student that in which we need to support them according to the survey is interview preparation. So for that reason, to prepare you for the interview, we have created this section. Yeah, so let me allow me to explain it one by one. Now, why you have to see this video? Why you have to do take notes on this? See, the first reason is why you have to do it is you have to study the job market, because in a market, in a job kind of market, there are a lot of companies. So we want you to make very rational choices. So first study job market. Then once you understand market, then set your goal that I want to work in this profile. I want to set vision. I want to become like this person. I want to achieve this much salary. And then once you have set a goal, then you go for interview preparation. Begin your interview preparation. Right now, what is the whole agenda? See, my entire team is working with you. We are conducting interviews, and we have found out that students are not even aware of the name of the company. So imagine you want to work in a multinational company, but you don't know their names. So forget about their job profile, their clients, projects, everything. So here, in every video, we will improve your knowledge just by 1%. We will improve your information by just 1%. Now you do it for 6 months. So from this knowledge, you will have the entire market study done. So you can make very good choices. Second reason is how do you prepare yourself for an interview? Because most of you are fearful about the interviews for a simple reason, you don't know what will be asked in that interview. So my recommendation is whenever you are seeing this video, come with a diary, prepare notes. Yeah, you make a special job study diary. And finally, you explore the employer's website. That is very, very important, because I have to prepare this video in a short while. I cannot explore it on my own. So you take your own time and explore it. The third point is what you have to do when you do this. It's a very simple process. First thing is you analyze your skills. I will be telling you what kind of skill requirement is there in the market. There are three kind of skill requirement for any job profile. One is software skills, other is design skills, and third is soft skills. Yeah. So every company, depending upon, will have variable requirement in the three areas. So all these three areas, now analyze your skills. Yeah, how much designing skills you have, what kind of software skills you have, and what kind of soft skills you have. Yeah, and once you do this, just become aware of two things. What are these two things? These two things are, whenever you were seeing that video, were you having a sense of self-belief? Were you feeling confident in that area? Just be aware of that and note down those points. Now, you also see, fear is a very good indicator. Fear only means that you are not prepared in that area. So if they are asking, let's say for example, this video, if this is asking you to have excellent spoken English skills and you feel fearful, अगर आपको डर लगा है तो इसका मतलब आप वहाँ पे प्रिपेयर्ड नहीं हो. तो ये जो फियर है उसके भी पॉइंट आप नोट डाउन करो. यहाँ पे टेंशन हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, ये इसको मेंशन करो. अभी क्या करना है कि जिस पॉइंट पे आपको कॉन्फिडेंट फील हो रहा है उसको वैसे ही मत छोड़ो, वेरीफाई करो. देखो उस पर कुछ असाइनमेंट सॉल्व करके, कैट सेंटर के ट्रेनर से जाके मिलो, पूछो कि सर ये मेरे स्किल्स बराबर है क्या, अपने लाइफ के ये पॉइंट देखो, है ना. अभी जहां पे आपको फियर महसूस हो रहा है, सिंपली आपको जाना है यूनिवर्सिटी में लॉगिन कीजिए. मैंने इस वीडियो में मेंशन किए हैं, उस सेक्शन में जाइए और खुद उसका प्रिपेयर कीजिए.
Yeah, so that is how you have to go about the business here. ओके सो अब आपको पता चला होगा कि ये वीडियो देखना क्यों ज़रूरी है। इस वीडियो के अंदर आपको क्या क्या आउटपुट को मिलेगा, आपको इस वीडियो से क्या सीखने को मिलेगा, ये सब अब आपको पता चला होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आज की वैकेंसी कौन सी है, जॉब ओपनिंग कौन सी है। तो जॉब ओपनिंग है इंटीरियर डिज़ाइनर की। तो अब ये इंटीरियर डिज़ाइनर की वैकेंसी तो मेरे ख्याल से तो ये अब तक की 5 या 5th या 6th टाइम होगी इंटीरियर डिज़ाइनर की वैकेंसी। तो चलिए अब आपको पता चला होगा कि इंटीरियर डिज़ाइनर में तो स्कोप बहुत ज़्यादा है। तो इंटीरियर डिज़ाइनर करते क्या है ये भी थोड़ा हम देखते हैं। तो इंटीरियर डिज़ाइनर क्या करते हैं, तो इनका जॉब डिस्क्रिप्शन मैंने दिया है। तो इंटीरियर डिज़ाइनर क्या करते हैं कि अंडरटेक डिज़ाइन प्रोजेक्ट फ्रॉम कंसेप्ट टू कंप्लीशन, then define project requirement and schedule during the brief, then interpret and translate customer needs into rough plan, set cost and project fees according to budget, then research and decide on materials and product sourcing, supervise work progress, then work closely with designers, decorators, architect and constructor, research and follow industry changes, evolution and best practices। मतलब क्या कि आपको जो आपको क्लाइंट होगा उनके रिक्वायरमेंट आपको पहले सुननी होगी और उसके हिसाब से आपको एक रफ प्लान बनाना होगा। ठीक है, मतलब आपको क्या करना है, एक इंटीरियर डिज़ाइनर का काम क्या रहता है कि आपको जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है उसे पहले समझना चाहिए। क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के अनुसार ही आपको आपका प्लान बनाना है, एक रफ प्लान बनाना है। फिर उसको आप उसके लिए आपको रिसर्च एंड डिसाइड ऑन मटेरियल डिसाइड करना है उसके ऊपर, और सोर्स भी डिसाइड करना है। ठीक है, देन सुपरवाइज वर्क प्रोग्रेस, मतलब जो वर्क हो रहा है उसको सुपरवाइज करना है कि आपने जो प्लान दिया है उसके अनुसार वो हो रहा है कि नहीं। ये सब इंटीरियर डिज़ाइनर की डिस्क्रिप्शन है, ये सब इंटीरियर डिज़ाइनर करता है। ठीक है, देन वर्क क्लोजली विद डिज़ाइनर्स, डेकोरेटर्स, आर्किटेक्ट एंड कंस्ट्रक्टर, मतलब जो इस प्रोजेक्ट में शामिल है, जो इस प्रोजेक्ट के अंडर काम कर रहे हैं, जैसे कि आर्किटेक्ट, डिज़ाइनर्स, डेकोरेटर्स एंड कंस्ट्रक्टर, ये सब मिलके एक प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो उन सब से आपको क्या करना है, कोऑर्डिनेट करना है, उन सब से आपकी हेल्प चाहिए, उन सब से आपको कोऑर्डिनेट करके एक प्लान बनाना है और उसके अकॉर्डिंगली आपको काम करना है। ठीक है, तो ये जो काम है वो इंटीरियर डिज़ाइनर का काम है। इंटीरियर डिज़ाइनर का स्कोप बहुत ज़्यादा है। अब तक के मैंने जितने भी वीडियोस बनाए हैं, जितने भी वीडियोस हमारे आए हैं, उन सब में इंटीरियर डिज़ाइनर की वैकेंसी है। उनमें से मोस्ट ऑफ दी वीडियो जो है वो इंटीरियर डिज़ाइनर के ऊपर है। ठीक है, तो इंटीरियर डिज़ाइनर की वैकेंसी तो बहुत ज़्यादा है। अभी इंटीरियर डिज़ाइनर की वैकेंसी कौन सी कंपनी की तरफ से है ये, तो इंटीरियर डिज़ाइनर की वैकेंसी है काश्या डिज़ाइन से। अभी क्या काश्या डिज़ाइंस क्या है, इनके बारे में थोड़ा सा हम पता करते हैं। तो काश्या डिज़ाइंस क्या है कि वो जो है उनकी सर्विसेज क्या है, तो रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट लेती है, वो कमर्शियल प्रोजेक्ट लेती है, हॉस्पिटैलिटी एंड कंसल्टेंसी, वो एक कंसल्टेंसी भी है, वो रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स भी लेती है। तो लोकेशन कहाँ पे है, तो वाकड़ में लोकेशन है, मतलब पुणे में लोकेशन है इनका। तो जो पुणे से बिलोंग करते हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वाकड़ का लोकेशन है। अब काश्या के थोड़े से प्रोजेक्ट देखते हैं, उनके प्रोजेक्ट क्या क्या है। तो उनके प्रोजेक्ट्स तो हम देख रहे हैं। तो प्रोजेक्ट्स क्या है कि एक बेडरूम है, फिर एक ऑफिस है, मतलब एक रेसिडेंशियल का प्रोजेक्ट है, एक कमर्शियल का प्रोजेक्ट है, फिर से नीचे जो है वो रेसिडेंशियल का प्रोजेक्ट है। तो ये जो है ये सब उन्होंने सॉफ्टवेयर में बनाए। अब कौन से सॉफ्टवेयर में बनाए वो भी हम देखेंगे। तो इसमें आप देख सकते हो कि ये जो है वो बहुत ही रियलिस्टिक व्यू है। ऐसे नहीं लग रहा कि ये सॉफ्टवेयर में बनाए है, इसे लग रहा है कि वो वहाँ पे जाके क्लिक किया है फोटो। तो ये सब इफेक्ट कहाँ से आते हैं, इतनी लाइटिंग इफेक्ट, ग्लॉसी इफेक्ट्स, ये सब जो है वो सॉफ्टवेयर में बनाया है इन्होंने। ठीक है, तो ये कमर्शियल रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं। अब इनका मेल आईडी, इनका मेल का स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे डाला है, जो उनकी तरफ से जो हमें मेल आया था उसका मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ पे डाला है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप चेक कर सकते हो। अब एक्सपेक्टेशंस क्या है उनकी, तो एक्सपेक्टेशन क्या है कि ऑटोकैड एंड गूगल स्केचअप एंड गुड कम्युनिकेशन। अब जैसे कि मैंने बताया कि वो जो प्रोजेक्ट है वो लाइटिंग इफेक्ट, ग्लॉसीनेस उतना, ये जो बेड बनाया है या फिर फैंस एंड लाइट्स ऑल, ये सब जो है वो किस में बनाया है, तो ऑटोकैड एंड गूगल स्केचअप में। तो उनके एक्सपेक्टेशंस भी ऑफ कोर्स वही होंगे। जिस कैंडिडेट को ऑटोकैड आता है या फिर गूगल स्केचअप आता है उसी कैंडिडेट को वो हायर करेंगे। तो अब आपको पता चला होगा कि इंटीरियर डिज़ाइनर के लिए सॉफ्टवेयर्स आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर इंटीरियर डिज़ाइनर के लिए कौन से है, ऑटोकैड एंड गूगल स्केचअप। तो थोड़ा सा हम देखते हैं कि ऑटोकैड सॉफ्टवेयर है क्या। तो चलिए देखते हैं ऑटोकैड का वीडियो। So I provide drafting services for interior designers. I find AutoCAD to be one of the most favorite tasks that I do.
AutoCAD is one of the most versatile tools. I find it very intuitive and very helpful and very easy to get the job done. AutoCAD is the most important program. It's like a common language. अब सेकंड क्या है उनकी एक्सपेक्टेशन की गुड कम्युनिकेशन, मतलब आपको कम्युनिकेशन, आपकी कम्युनिकेशन जो है वो अच्छी होनी चाहिए। अब ऑफ कोर्स आपको क्लाइंट के साथ बात करनी है तो क्लाइंट के जो नीड है वो आपको समझने हैं, आप जो कहना चाह रहे हैं वो क्लाइंट को समझना चाहिए। तो इसके लिए क्या चाहिए कि कम्युनिकेशन आपका प्रॉपर होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। तो ये सब जो है वो मिलके आप क्या वो ये सब क्वालिटीज़ अगर आपके अंदर होगी तो वो आपको हायर करेंगे एज ए इंटीरियर डिज़ाइनर के लिए, ठीक है। तो ऑटोकैड, गूगल स्केचअप एंड गुड कम्युनिकेशन, ये उनके एक्सपेक्टेशंस है। अब ऑटोकैड सॉफ्टवेयर और गूगल स्केचअप सॉफ्टवेयर ये आप कहाँ से सीखोगे? तो इसके लिए हमने एक यूनिवर्सिटी पोर्टल बनाया है, डिज़ाइन योर ओन यूनिवर्सिटी पोर्टल। तो डिज़ाइन योर ओन यूनिवर्सिटी, अगर आप यूनिवर्सिटी को सब्सक्राइब करते हो तो आप ये सॉफ्टवेयर सीख सकते हो। तो अगर यूनिवर्सिटी सब्सक्राइब करते हो तो मतलब क्या, यूनिवर्सिटी में जाके आप कहाँ पे ये सॉफ्टवेयर सीखोगे? तो ऑटोकैड सॉफ्टवेयर कहाँ से सीखोगे? तो यूनिवर्सिटी का अगर सब्सक्राइब करते हो तो स्पेस डिज़ाइन का एक सेक्शन होगा, उसके अंदर मॉडलिंग फंडामेंटल्स का एक सेक्शन होगा, उसके अंदर ऑटोकैड 2D या 3D उसका एक सेक्शन होगा। तो वहाँ पे जाके आप ऑटोकैड सॉफ्टवेयर सीख सकते हो। अब गूगल स्केचअप कहाँ पे सीख सकते हो? कंपनी को तो चाहिए गूगल स्केचअप, तो आप वो कहाँ से सीखोगे? तो सेम यूनिवर्सिटी सब्सक्राइब करो, स्पेस डिज़ाइन अंडर फंड, उसमें उसके अंदर मॉडलिंग फंडामेंटल्स और उसके अंदर स्केचअप। तो वो ये दोनों सॉफ्टवेयर आप यूनिवर्सिटी में सीख सकते हो। तो उसके लिए आपको यूनिवर्सिटी को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अब ये तो कंपनी की तरफ से है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी में सिर्फ कंपनी को वो जो चाहिए वही है क्या? नहीं, कंपनी को क्या चाहिए? सॉफ्टवेयर स्किल्स चाहिए। लेकिन कंपनी क्या बताती है कि सिर्फ सॉफ्टवेयर स्किल्स बताती है, लेकिन अदर देन सॉफ्टवेयर स्किल्स आपके अंदर और स्किल्स होने चाहिए, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, इंटरव्यू प्रिपरेटरी स्किल्स होनी चाहिए, बिहेवियर स्किल्स होने चाहिए आपके अंदर। तो ये सब आप कहाँ से सीखोगे? तो उसके लिए भी हमने यूनिवर्सिटी में कुछ वीडियोस ऐड कर दिए हैं, जैसे कि अगर इंग्लिश कम्युनिकेशन आपको अच्छा होना चाहिए या फिर कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए, तो वो कहाँ पे सीखोगे? तो यूनिवर्सिटी पोर्टल में स्किल अप सेक्शन में 5 इजी स्टेप्स टू इम्प्रूव इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स, वहाँ पे जाके आप आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन और बेटर बना सकते हो, ठीक है। अब इंटरव्यू प्रिपरेटरी स्किल्स क्या होता है? आपको सॉफ्टवेयर आता है, आपका कम्युनिकेशन भी अच्छा है, लेकिन आप जाते समय अगर आप फॉर्मल में नहीं गए, सपोज आप कुछ फैंसी जीन्स पहन के गए, फैंसी टॉप, टी शर्ट पहन के गए, या फिर सिंपल चप्पल पहन के गए, तो वो पहले दिन आपको रिजेक्ट करेंगे। तो ये जो है ड्रेस वेल, आपका जो ड्रेसिंग सेंस रहता है, या फिर आपके जो इंटरव्यू में जाते समय हाय हेलो करना होता है, या फिर आपकी जो स्माइल रहती है, ये सब डिपेंड करता है आपके इंटरव्यू क्रैक करने के लिए। तो ये सब आप कहाँ पे सीखोगे? ये सब आप इम्प्रूव कहाँ से करोगे? तो स्किल अप सेक्शन में इंटरव्यू प्रिपरेटरी स्किल्स में आप ये सब इम्प्रूव कर सकते हो। मतलब यहाँ पे सब बताया गया है कि आप कैसे इंटरव्यू में जाके क्या क्या बोलना चाहिए, आपका इंट्रोडक्शन कैसे देना चाहिए, ये सब इंटरव्यू प्रिपरेटरी स्किल्स में बताया गया है। तो ये वीडियो देख के आप अपना इंटरव्यू प्रिपरेटरी स्किल्स आपके इम्प्रूव कर सकते हो, प्लस आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन इम्प्रूव कर सकते हो, और सॉफ्टवेयर का नॉलेज तो ऑफकोर्स इम्प्रूव कर सकते हो। तो इसके लिए क्या चाहिए? आपको यूनिवर्सिटी को सब्सक्राइब करना चाहिए। तो जल्दी से जल्दी यूनिवर्सिटी को सब्सक्राइब करो, और जल्दी से जल्दी आपकी जो इंटीरियर डिज़ाइनर की पोजीशन है वो फिक्स कर दो, ठीक है। आप अगर इंटरेस्टेड हो हमारे यूनिवर्सिटी में, तो मैंने एक यहाँ पे यूनिवर्सिटी का एक छोटा सा स्क्रीनशॉट दिया है, जिसमें सिविल कोर्सेज का एक आप देख रहे हो, उसकी सिविल कोर्सेज पैकेज, देन स्पेस डिज़ाइन का एक सेक्शन है, देन डेली रिचुअल फॉर बीइंग हैप्पी, मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर जो है वो भी हमने यूनिवर्सिटी में ऐड कर दिए। तो ये एक स्क्रीनशॉट है, मतलब यहाँ ऐसे हमारी यूनिवर्सिटी दिखती है, ठीक है। अब अगर आप यूनिवर्सिटी पोर्टल में इंटरेस्टेड हो, आपको आपका फ्यूचर इंटीरियर डिज़ाइनिंग में करना है, एज ए डिज़ाइनर आपको आपकी वैकेंसी, आपकी पोजीशन फिक्स करनी है, तो जल्दी से जल्दी इस दिए गए नंबर पे कॉल करो, इंक्वायरी करो, या फिर आप मेल भी कर सकते हो, ओके। सो आपकी सीट जो है वो जल्दी से जल्दी ग्रैब करो, यस। एंड थैंक यू वेरी मच, and wish you all the very best.